दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। न्यूज़ परिवर्तन 24 के न्यूज़ रूम स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की दुनिया में। सबसे पहले बीते दिनों हमने आपसे एक वीडियो शेयर की थी कि उसमें हमने कहा था कि एक वीडियो वायरल की है किसी ने, और उसके जो भी नाम उसमें आए थे उनका हमने वर्जन लिया था क्या, और वो रिकॉर्डेड है। सबसे पहले आज एक वर्जन आपको सुनाते हैं। सुखजिंदर जो ऐसी कम्युनिटी के उभरते हुए नेता हैं, लीजिए सुनिए क्या कहा उन्होंने। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੈ ਭੀਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥਿਕਸ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਸੇਠੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ issue ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3-4 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਵੱਤੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਜਾਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਸੀ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫੀਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਇਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਲੈਕਸ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਸੇਠੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। थैंक यू जी। ठीक है जी। तो ये सुखजिंदर सिंह, इन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ नहीं आई इसी में, और जो उन्होंने कारण बताया प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो उसकी कि जब बेअदबी हुई पहली बार बाबा अंबेडकर की, जिसमें नाम लिया उन्होंने एक इमिग्रेशन ऑफिस जो थिक्स है, एक पंकज शर्मा जो फायरमैन है नगर कौंसिल राजपुरा में, और एक जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पास एडवर्टाइजमेंट का वो है सेठी। यूनिपोल नाम से ऐसे कुछ नाम है, सेठी फैमिली है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो उसके पास कमेटी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट है फ्लैक्स लगाने का, एडवर्टाइजमेंट का। अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी पंकज शर्मा के बारे में। ये फायरमैन की पोस्ट पे है, लेकिन ये सेठी के लिए जो है कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर सेठी, उनके लिए काम करता है, जैसा कि आपने सुखजिंदर सिंह के बयान से सुना वर्जन का जो कहता है। और खुद जो सेठी हैं उन्होंने ये हमें बताया कि वो कोई सैलरी पे नहीं है पंकज शर्मा, जस्ट हमने एक रेट फिक्स किया हुआ अपने लिए, यानी कि सेठी साहब ने, कंट्रैक्टर ने अपने लिए रेट फिक्स किया हुआ है
कि मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है, तो हमने कहा हुआ है, यानी कि उन्होंने कहा हुआ है कि 90 रुपये हम लेंगे, आप इसको 100 में बेचो, 120 में बेचो, कितने में भी बेचो, वो सब आपका है। आपको कुछ पुरानी बात की तरफ से ले चलते हैं। जब हमने यहाँ पे नगर कौंसिल के बाहर एक धरना दिया था फ्लैक्स के धंधे को लेके, गौरख धंधा जो चल रहा था, जिसमें हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ये जो है करप्शन का मसला था कि लाखों से लेके करोड़ों तक जा सकती है, क्योंकि अनऑथोराइज जगह पे जो फ्लैक्स लगते थे उसमें से ये लोग पैसे चार्ज करते थे, और सेठी चार्ज करते थे, सेठी या नहीं कॉन्ट्रैक्टर यानी कि। लेकिन पंकज शर्मा के बारे में सुनने में आया था कि वो चार्ज करता है। फिर उन्होंने कहा पंकज शर्मा ने कि मैं तो ये काम करता नहीं, मेरे फादर के नाम से फर्म है, वो काम करते हैं। लेकिन इससे आपको जाहिर हो गया होगा कि वो खुद ही काम करता है। इन्होंने पंकज शर्मा और एक इमिग्रेशन ऑफिस का है फ्लैक्स के मुद्दे के लेकर हमारे अगेंस्ट एक पुलिस स्टेशन सिटी में एप्लीकेशन दी कि मैं तो काम करता नहीं, मेरे फादर काम करते हैं, उनके नाम से फर्म है, इसलिए ये गलत बयानबाजी है। हालांकि ये अगर सच भी होता तो ये सिविल लाइबिलिटी है, यानी कि मानहानि का केस बनता है। इसमें पुलिस के कोई रोल नहीं था, लेकिन एक जस्ट प्रेशर बनाने के लिए हमें ASI ने बुलाया। हमने उनको कहा कि ये मानहानि का केस बनता है, इनको कहो मानहानि का केस लगा दें अदालत में जाके। तो प्रेशर बनाने की कोशिश थी वो एक, लेकिन अब इससे साबित हो गया कि पंकज शर्मा खुद काम करता है। एक बार माफ़ी मांग चुका है, एक बार फिर से केस लगाया इसका बेअदबी का। ये अलग बात है कि पंकज शर्मा अगले दिन हमारे पास घर में आके माफ़ी मांग के गया, और उसके आने की CCTV की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की। लुधियाना वेस्ट का जो बाई इलेक्शन का नतीजा आज घोषित हुआ। संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी से तकरीबन 10,000 से ऊपर वोट लेके जीत हासिल की। कांग्रेस के आशु दूसरे स्थान पर है, और बीजेपी के जो थे कैंडिडेट हैं जीवन गुप्ता, वो तीसरे स्थान पर। श्रोमणी अकाली दल बादल वो चौथे स्थान पर है, लेकिन वो अपनी ज़मानत नहीं बचा सके। दूसरे राउंड तक, कुल राउंड थे 14 काउंटिंग के लिए, दूसरे राउंड तक शुरू से ही जो आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने बढ़त बनानी शुरू कर दी। पहले राउंड से लेके दूसरे तक ठीक चलता रहा। संजीव अरोड़ा के लिए तो लगातार ठीक चलता रहा, 14 राउंड तक ही वो बढ़त बनाए रखे। लेकिन अचानक तीसरे राउंड में बीजेपी दूसरे स्थान पर आ जाती है और कांग्रेस तीसरे स्थान पर, लेकिन मार्जिन सिर्फ 200 के करीब वोटों का। लेकिन चौथे राउंड आते आते समाप्त होते होते ये बाजी फिर से पलट जाती है और बीजेपी तीसरे स्थान पर फिर से आ जाती है और लगातार फिर तीसरे स्थान तक रहती है। इस चुनाव में किसने क्या क्या प्रक्रिया दी? सबसे बड़ी अहम जो प्रक्रिया थी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की थी। उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि राज्यसभा की सीट अब खाली होगी, तो उन्होंने 2 बार कहा मैं राज्यसभा नहीं जा रहा। यानी कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा की सीट के दावेदार नहीं है, वो नहीं जा रहे। इसके बाद किसी ने सवाल नहीं पूछा कि अगर राज्यसभा नहीं जाएंगे तो क्या वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर का उसमें रेस में आएंगे, यानी कि बनेंगे। रेस में तो क्या आना है आप सुब्रमण्यम को, जबकि वो ही इस पे अपना कब्ज़ा जमाए हुए हैं पंजाब के ऊपर। दिल्ली की हार के बाद लगातार यहीं पे ही टिके हुए हैं अपनी टीम के साथ, सिसोदिया और कई अन्य। तो ये एक स्पष्टता है, बिल्कुल स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल खुद कहा कि वो राज्यसभा नहीं जा रहे। आगे किसी ने सवाल नहीं पूछा तो वो भी उठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये लास्ट क्वेश्चन था कि वो चीफ मिनिस्टर यहाँ के पंजाब के बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे मान लीजिए, तो कुमार विश्वास की वो एक बयान जो उन्होंने दिया था पिछले इलेक्शन के दौरान 22 में असेंबली के जब इलेक्शन थे पंजाब के, तो उस बयान की तरफ अगर ध्यान देंगे, उसके बाद भगवंत मान जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कुमार विश्वास के खिलाफ FIR दर्ज की। नतीजन कुछ भी नहीं था, वो हाई कोर्ट से ब्री हुए
FIR खारिज हो गई। आगे देखने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल का अगला स्टेप क्या होगा। क्या वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, उसको स्ट्रॉन्ग करने की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि पंजाब जिस दौर से गुजर रहा है कि दिल्ली से ला के जो लोग चेयरमैन वगैरह बिठाए जा रहे हैं। और लेटेस्ट डेवलपमेंट कुछ दिन पहले की ये है कि जितने भी विकास के बोर्ड थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स और ज़मीनों के भी जो थे, इतनी ज़मीन है जो पंजाब में, उन सब से भगवंत मान को हटा दिया गया और सारा का सारा चार्ज जो है चीफ सेक्रेटरी को दे दिया गया। और चीफ सेक्रेटरी जो है वो अरविंद केजरीवाल के करीबी बताए जाते हैं। तो शायद ये एक मूव हो सकती है, कैलकुलेटिव मूव हो सकती है कि चीफ मिनिस्टर का पद अपनी झोली में डालें अरविंद केजरीवाल। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब चर्चा करते हैं पहलगाम हमले के बाद भारत ने डिक्लेयर किया जो इंडस वाटर संधि थी पाकिस्तान के साथ, उसको विड्रॉ कर लिया, संधि को तोड़ दिया कि हम पाकिस्तान को इंडस वाटर नहीं देंगे। अमित शाह गृह मंत्री ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम ये कभी भी पानी का जो मुद्दा है रिस्टोर नहीं करेंगे, पाकिस्तान को नहीं देंगे। जबकि बात यह है कि 80% जो फार्म्स हैं पाकिस्तान के वो इंडस वाटर से फीड होते हैं। ये भी कहा गया अमित शाह द्वारा कि ये जो पानी है हम डाइवर्ट करेंगे राजस्थान को फीड करने के लिए। उधर कैबिनेट कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई, वहाँ भी ये कहा गया कि ये जो बात है, जो डिसीजन लिया गया है पाकिस्तान के साथ ये संधि तोड़ने का, ये रिस्टोर नहीं किया जाएगा। बीते दिनों हमने एक खबर जो वीडियो डाली थी कि मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन के ऊपर ईडी ने एक FIR दर्ज की है 2000 करोड़ रुपए के फ्रॉड के सिलसिले में, जो कि स्कूलों में क्लासरूम बनाने के मुद्दे पर था। अब ईडी ने कई स्थानों पर छापेमारी की है और जो इससे रिलेटेड फाइल्स थी वो सारी उन्होंने जब्त कर ली, अपने कब्जे में ले ली। और कुछ पासबुक्स मिली हैं ईडी को जो कि लेबर के नाम पे वहाँ पे जो अकाउंट खोले गए थे बैंकों में उससे संबंधित है। और कहा गया है कि ये एक फर्जीवाड़ा था कि उनके नाम पे अकाउंट खोल के उनको पैसे ट्रांसफ़र होते थे। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये क्या करवट लेता है ये 2000 करोड़ का फ्रॉड। USA के ईरान के ऊपर हमले के बाद जिसमें 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए, खबर ये भी सामने आई कि जो वहाँ पे परमाणु का जो वो था सारा, वो वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था ईरान द्वारा पहले ही। तो इसके चलते ईरान की कैबिनेट कमेटी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, एक रास्ता है जहाँ से 20% तेल का निर्यात वहाँ से जहाज़ गुजर के जाते हैं, उसको बंद कर दिया है, जिससे कच्चे तेल की मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतों में भारी उछाल आया है। USA ने इसके आर्थिक दिवालियापन कहा, तो भारत ने कहा कि इसके बंद होने से रास्ते के हम पर कोई असर नहीं होगा। तो दोस्तों, आपकी हाउस लोन की इंस्टॉलमेंट कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, और साथ ही रेफरेंस आता है कि रिज़र्व बैंक द्वारा एक डिसाइड किया जाता है रेपो रेट, REPO, रीपरचेज एग्रीमेंट रेट। तो ये क्या है और क्या कनेक्शन है इसका आपकी इंस्टॉलमेंट से, डिपॉजिट रेट से? आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेपो रेट है जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट है जिस रेट पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कर्ज देता है, और बैंक्स इस रेट के ऊपर अपना ओवरहेड वो जोड़ते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं, और वो रेट कस्टमर को ऑफ़र करते हैं। जब रेपो रेट बढ़ेगा तो आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी, जब रेपो रेट घटेगा तो आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि उससे कॉस्ट ऑफ फंड्स जो निकलता है
रेपो रेट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ता है, रेपो रेट घटने से कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आता है। तो ये है रेपो रेट और आपकी इंस्टॉलमेंट में कनेक्शन। इसके साथ ही खबरों की इसको यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे अगले बुलेटिन में, और इसके बाद पंकज शर्मा का वर्जन जो है रिकॉर्डेड आपको सुनाएंगे। नमस्कार।